Explain the evolution of atmosphere. So initially the Earth was surrounded by hydrogen and helium. First of all, what is the atmosphere? Okay, In very simple term, atmosphere is a layer of gas which is surrounding the earth. atmosphere of gas surrounding the Earth. Okay. In the formation of the Earth, initially there was hydrogen and helium present in the atmosphere. Subsequently, there was emission of release of gases from the interior of the Earth. Due to solar flares, these elements, hydrogen, helium, which were in the lighter, it moved away from the earth's. Yes. They moved out from the Earth's Yes, and simultaneously the process of Earth's cooling was taking place. Because of this cooling, the Earth got contracted. atmosphere started. Okay, जब contraction हुआ तो what happened? Because of that squeezing, there was outpouring of the gases from the Earth's interior. That process is called as degassing. Okay. Due to degassing, there was evolution of gases such as methane, water, H2O, and nitrogen. Okay. And with time, there was Carbon dioxide. carbon dioxide. So now the composition of Earth's atmosphere was dominated by greenhouse gases like carbon dioxide, methane, water vapor. Okay. Little bit of oxygen, but due to heating of the atmosphere, This resulted into correct. Due to heating of atmosphere, it resulted into it resulted in the absorption of carbon dioxide into the cloud formation. Ultimately, it ocean formation. हाँ, तो क्लाउड्स की वजह से रेनफॉल हुआ एंड बिकॉज ऑफ दिस रेनफॉल द एटमॉस्फेरिक CO2 गॉट combined with the water and it poured down into the ocean. Now the ocean is supposed to be the largest sink of carbon dioxide on this earth. Later on, there was a life form emerging in the oceanic body in the form of unicellular amoeba, which further evolution के साथ what happened? Then also evolution of photosynthetic bacteria. Yes, तो photosynthesis का रेट बढ़ा, उसके बाद जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ, that oxygen it released into the atmosphere, and now the present day composition of atmosphere is what? Calm down. 78% nitrogen and 21% oxygen. ओके, तो दैट इज प्रेजेंट डे एटमॉस्फेयर. आगे जाके शायद वो चेंज भी हो सकता है. ओके, मे बी बिकॉज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज. ओके, सो इन द लॉन्ग टर्म देखो ये CO2 येस, बट द अमाउंट, ये जो रेट होता है ना वो वेरी होता है. प्रेसिपिटेशन डेली तो नहीं होगा. ओके, प्रेसिपिटेशन नीड्स व्हाट, आज हम लोग देखेंगे मॉइस्चर. ओके, अभी द थिंग इज दैट इन आवर प्रेजेंट केस हम लोग का जो हिस्ट्री है क्लाइमेटिक हिस्ट्री, एंड वी नो दैट इन दैट क्लाइमेटिक हिस्ट्री वी नो दैट ओडिशा विल हैव a moderate winter. It will not have a severe winter as happens in the Delhi, Himachal ऐसा. But because of climate change, okay, the atmospheric composition is changing in certain location, और उसका impact is then you will be able to face your severe winter, and the population is not acclimatized, मतलब उतना रेंज नहीं है. Now देखो, okay, we are living beings. Okay, so there is a range where you can sustain, okay, this severe winter and severe summer. तो अगर वो रेंज ज़्यादा होगा तो you might be able to sustain. अभी उससे भी ज़्यादा है तो बिकॉज ऑफ इनोवेशन टेक्नोलॉजी हम लोग AC यूज़ करेंगे एंड वी आर एबल टू सस्टेन इवन इन दैट एंड. ओके, लेकिन उसके बियॉन्ड अगर जाएंगे देन इट विल अगेन क्रिएट प्रॉब्लम. अगर ऐसे ह्यूमन बीइंग वी माइट बी एबल टू रिमेन इन द होम, लेकिन एनिमल फ्लोरा फाउना उनका क्या करेंगे? दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस बायोस्फीयर. सो
उनको भी प्रॉब्लम हो जाता है। और सबसे ज़्यादा जो मरीन एलिमेंट्स होता है उनका रेंज बहुत कम होता है। सर, अगर एक स्टेटमेंट आया कि there is a disbalance between the oxygen consumption by the living beings and oxygen recycling in the environment, is that correct? नहीं, ऐसा देखो क्या होता है, डिसबैलेंस कंजम्पशन कैसा होगा? We are taking in देखो कार्बन रिलीज कहाँ से होता है? कार्बन बाहर से कहीं नहीं आएगा। द कार्बन विच इज स्टोर्ड इन द सिंक कार्बन सिंक इन द फॉर्म ऑफ ओशन, इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेशन। अगर वेजिटेशन क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस की वजह से कार्बन अपने आप में स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंटेंट, इट विल गिव आउट ऑक्सीजन। समटाइम इट ऑल्सो नीड्स ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, दैट इज़ वन थिंग। अभी जब कार्बन साइकिल में हम लोग पढ़ते हैं तो कार्बन साइकिल में क्या होगा, वेन एवर दिस वेजिटेशन डाइज द ऑर्गेनिक कंपोनेंट इज अगेन रिलीज्ड बैक टू द एटमॉस्फेयर, टू द एनवायरनमेंट। लेकिन वो एक रेट होता है, मतलब अगर एक बड़ा बैनियन ट्री एक बार उसने कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करना शुरू किया, स्टोर करना शुरू किया, तो हम लोग ने देखा कि बैनियन ट्रीज आर सपोज टू लिव लॉन्ग टिल एटलीस्ट 100 ईयर्स। अगर हम लोग उसको काटेंगे, कंटिन्यूसली डिफॉरेस्ट्रेशन करेंगे, तो जो रेट है कार्बन को वापस रिसाइकल होकर एनवायरनमेंट में आने का, दैट इज़ इंक्रीजिंग। ओके, सिर्फ पेड़ काटने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर पेड़ को जला देंगे तब जाके प्रॉब्लम होता है। देखो काट के पेड़ को रखेंगे, फिर भी उसमें से धीरे धीरे वो डिकम्पोज ही होगा ना। बट मतलब एंड में अगर सॉइल में डाल दिया तो फिर प्रॉब्लम नहीं, सॉइल में भी डाल दिया तो बैक्टीरिया विल एक्ट ऑन इट और वो स्टिंग करना शुरू करेगा कोई भी चीज़। तो कार्बन रिसाइकल कैसा होगा? इमीडिएटली वो सॉइल में तो मिक्स नहीं होगा ऐसा। बट तो डिकम्पोजर्स उसको मतलब डिवाइड कर लेंगे ऐसे। हाँ, करने दो ना। तो अगर वो सॉइल इरोड हो गया, टॉप सॉइल, तो क्या करोगे? ओके, तो इट हैज़ टू गेट रिसाइकल्ड थ्रू अ प्रॉपर चैनल। चलो हम लोग ने पेड़ भी काट के रख दिया, ठीक है, लेकिन उसको जलाया तो अगेन अगर काट के रख दिया तो शायद 10 साल बाद वो रिलीज़ होता था, लेकिन हम लोग ने अगर जला दिया तो वो 10 दिन में पूरा वो कार्बन रिलीज़ हो जाएगा। एंड दैट कार्बन इज़ वोलेटाइल, इट इज़ नॉट स्टेबल, प्लस देयर इज़ विंड्स। तो आपने जलाया यहाँ पे, लेकिन वो कार्बन कहाँ तक जाएगा? दूर तक जाएगा। अगर साइक्लोन आया तो साइक्लोन क्या करेगा, चीज़ें ज़मीन से उठा के इट सक्स ऑल द डस्ट पार्टिकल इन द अबाउट, इट पुशेस द पार्टिकल्स इन द अबाउट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, और वो जाके स्प्रेड होगा। हाँ हाँ, लगा दीजिए, मेरे पास है रिमोट। $26.7। तो बट मैंने सपोज ऐसा क्वेश्चन आया कि आर ट्रीज द मेजर कंज्यूमर कार्बन डाइऑक्साइड या ओशन के साइड ऑफ बैक्टीरिया, तो ओशन का ही सही आंसर होता है। हाँ, ओशन है। ओशन के जो बैक्टीरिया भी हैं वो भी ज़्यादा मतलब कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं कंपेयर टू ट्रीज। हम लोग ओशन फर्टिलाइजेशन करते हैं, मतलब हम लोग उसमें आयन फाइलिंग्स डालते हैं सो दैट वो अल्गेस उनका ज़्यादा ग्रो होता है। ओके, एंड जब algae का ज़्यादा ग्रो होगा तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा। ओके, लेकिन बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द मरीन टेम्परेचर, ओशन का अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा वाटर बॉडी का, तो उसका कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर करने का उसका कैपेसिटी वीक हो जाता है। तो अगेन दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज एंटरिंग इनटू व्हाट, जब तक वो सॉइल में है चलेगा, जब तक वो पानी में है चलेगा। ओके, लेकिन जब तक एनवायरनमेंट में आएगा देन इट विल क्रिएट प्रॉब्लम टू द बायोस्फीयर। ओके, और फिर वो देखो हीट है ना, अल्टीमेटली कार्बन विल ट्रैप व्हाट हीट एंड इट विल डिस्टर्ब द प्रेशर सिस्टम्स, जो आज हम लोग अभी पढ़ेंगे। एक बार प्रेशर सिस्टम वीक हो गया ना, दैट मीन्स आपका रेनफॉल पैटर्न चेंज हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ अ प्रेशर सिस्टम विच पूरे वर्ल्ड में देर आर ओनली 2 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स। बाकी फैक्टर्स भी हैं, लेकिन द मेन जनरल पर्सपेक्टिव में टेम्परेचर, हीट एंड प्रेशर, यही डिसाइड करेगा विंड्स क्या होगा, साइक्लोन क्या होगा, रेनफॉल क्या होगा। ओके, और इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन व्हाट, द नेचर ऑफ
हीट इन द एटमॉस्फेयर, कहीं पे हीट डेफिसिट है, कहीं पे हीट सरप्लस है, तो सरप्लस से डेफिसिट में वो फ्लो करेगा। ओके अगर डिफरेंस इज मोर देन इट विल फ्लो मोर, लेकिन यहाँ पे भी अभी हीट डेफिसिट कम हो रहा है, सरप्लस ही होते जा रहा है, तो वो फ्लो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके इन द लॉन्ग टर्म अर्थ के हिस्ट्री के जियोलॉजिकल हिस्ट्री के टर्म में दिस इज कॉमन थिंग। ओके वो आइसोस्टैटिक बैलेंस होगा क्लाइमेट में भी। ओके इन अ लॉन्ग टर्म अगर हम लोग नहीं करेंगे तो अर्थ का सिस्टम उसको बैलेंस करने को देखेगा, लेकिन प्रेजेंट कंटेक्स्ट में इट इज़ अफेक्टिंग अस, इट इज़ अफेक्टिंग अ बायोस्फीयर ना, इसके लिए हम लोग उसको देखते हैं। ओके देयर आर ऑल्सो नेचुरल कॉजेज विच लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। ओके so moving ahead we will continue with today with climatology. What exactly is the climate and what exactly is the weather? Do you उसको बंद करना है? नहीं आवाज़ भी आ रहा है ना? Okay. तो what is the difference between weather and climate? Okay, weather as you all said it is a day-to-day phenomena and climate is a long term, मतलब 30-50 years का जो डेटा होता है पैटर्न दैट इज क्लाइमेट। ओके सो हम लोग इनकरेक्टली बोलते हैं आज क्लाइमेट क्या है, आज क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है। सी अर्थ इज मेड अप ऑफ अगेन 4 कंपोनेंट्स, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। तो जस्ट दिस इज अ लेयर ऑफ गैस विच इज सराउंडिंग द अर्थ एंड इट इज remaining close to the earth because of earth's gravity. Okay, again as a lithosphere this is also this atmosphere has also been set according to process of differentiation. मतलब क्या, the elements of atmosphere which is more denser they are towards the lower altitude यानी height, to the lower layer of the atmosphere. So when we study atmosphere we are able to see that atmosphere is not uniform. Okay, it is made up of multiple layers. Okay, the layer which is more near to the surface उसको बोलेंगे troposphere, then stratosphere, मेजोस्फीयर और बाद में एक्सोस्फीयर। ठीक है, थर्मोस्फीयर इज ऑल्सो थर्मोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ एक्सोस्फीयर। तो वी हैव टू स्टडी ईच एंड एवरी लेयर इन थोड़ा सा डिटेल, ज़्यादा नहीं, बट द मेन रिलेवेंट इज व्हाट, ट्रोपोस्फीयर, बिकॉज सबसे ज़्यादा डेंसर कहाँ पे होगा एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फीयर। तो 90% ऑफ द एटमॉस्फेयर इज concentrated in troposphere. Okay, so what exactly is the composition of atmosphere? Atmosphere in very simple term it is a collection of gases, water vapor, okay, which is surrounding the earth. Okay, इसमें हम लोग पढ़ेंगे हीट बैलेंस क्या है, टेम्परेचर प्रोफाइल, मेरिडियनल हीट ट्रांसफर, वेदर सिस्टम्स, टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। ओके, द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, 99% of the total atmosphere is confined to the height of 32 kilometers. मतलब this is our earth surface. अर्थ सरफेस से रफली 30 किलोमीटर तक क्या है, मतलब मैक्सिमम एटमॉस्फेयर इज इन दिस। इसके कुछ हाइट में ट्रोपोस्फियर है, फिर स्ट्रेटोस्फियर है। ओके, इसके बियॉन्ड भी एटमॉस्फेयर है, ऐसा नहीं है, लेकिन द डेंसिटी इज वेरी वेरी थिन, वेरी लेस। ओके, तो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर इज व्हाट, फर्स्ट इज गैसेस।
ओके अभी कौन से गैसेस हैं, तो मेजर हम लोग गैसेस पढ़ेंगे, नॉट एवरी गैस वी विल स्टडी. ऑक्सीजन वी आर एबल टू फाइंड ऑक्सीजन अप टू 120 किलोमीटर्स. However, the maximum concentration of oxygen will be to surface. Okay, even if you go in Shivaliks up 2000 meters से भी ऊपर जाओ, you will find there is a decrease in the density of the oxygen. Okay, आप 5-6 kilometers ऊपर जाओ, 5000 meters above, you will need an artificial oxygen. तो समझ रहे हो कितना ड्रास्टिक चेंज होता है ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन में. ओके एंड व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इट हेल्प्स इन कंबशन एंड बर्निंग एंड ऑल्सो इट सपोर्ट्स लाइफ फॉर्म. ओके देन द नेक्स्ट वन इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर. we are able to find this in up to 90 kilometers. This acts like a greenhouse gas. Greenhouse gas मतलब it doesn't trap incoming, it is almost transparent to the incoming solar radiation. Why? Because incoming solar radiations, they are coming from a sun, which is the hottest body. The more the body is hot, it will radiate heat in the short waves. And short waves के लिए ये जो gases है, they are like transparent. The short wave can easily penetrate through them. Okay. However, this insolation, it will heat sun, Earth surface. In return, now Earth surface has become hot and it will radiate heat, but that radiation is in the long wave. And now that long wave heat is absorbed or trapped by greenhouse gases. Okay, so they absorb terrestrial radiation, acts like a greenhouse gas. Okay, then there is ozone. So, what the greenhouse gas is green, that must be according to the density of the gases in layers. देखो एटमॉस्फेयर, द थिंग इज दैट अर्थ में अभी देयर इज कंटिन्यूस टर्बुलेंस हैपनिंग. कन्वेक्शन हो रहा है, कहीं पे साइक्लोन हो रहा है, कहीं पे विंड्स हो रहे हैं, कहीं पे कन्वर्जेंस हो रहा है, कहीं पे देयर इज सब्सिडेंस ऑफ, तो देयर इज कंटिन्यूस मिक्सिंग ऑफ एयर. ओके, तो ऐसा आपको इस लेयर में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, इस लेयर में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा, दैट इज कंटिन्यूसली मिक्सिंग. ओके, so this is ozone. Okay, so between it you will be able to see the maximum concentration of ozone between 10 to 15 kilometers from the earth's surface. Okay, insolation, it is an electromagnetic radiation, visible light. Okay, उसके बहुत सारे components होते हैं, अल्फा बीटा एक्सरेज, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेस. ओके, उसमें से there is स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट में का एक कंपोनेंट होता है कुछ रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स. ओके, उसमें से एक कंपोनेंट होता है यूवी, दैट इज अल्ट्रा वायलेट रेस, रेडिएशंस, यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी, इतना डिटेल में जाना नहीं है हमें. ठीक है, कौन सा सी? देखो सनस्क्रीन यूज़ करते हैं. सनस्क्रीन का कंसेप्ट क्या है? व्हाट इज दैट SPF? मतलब SPF 50 इज गुड या SPF 10 इज गुड? सन प्रोटेक्शन फैक्टर मतलब क्या? कितना ड्यूरेशन तक वो सनस्क्रीन आपके बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकता है सन वो रेडिएशन से? तो 30 मीन्स 30 सेकेंड्स, 30 आवर्स या 30 मिनट्स एंड 50 मिनट्स, मतलब 30 मिनट्स के लिए सिर्फ लगाएंगे हम लोग, लेकिन हम लोग तो बहुत टाइम तक बाहर होते हैं. इसको रिपीटेड लगाना पड़ता है, लेकिन 2-2 घंटे या 3-3 घंटे बाद लगाते हैं. तो व्हाट इज़ दैट 30? SPF 90 भी होता है. वो तो चिप लगेगा पूरा. SPF 90 मतलब करेक्ट. ये तो फिर वो देंगे पर मैं सुना था मिनट्स नहीं,
उसको पूछने का ना वहाँ पे, वो लोग तो बोलते नहीं मैं आप ये ले लो सर, आप ये ले लो, ठीक है। देखो एवरी स्किन, ये ह्यूमन बीइंग का जो स्किन होता है उसके अंदर होता है मेलेनिन पिगमेंट्स। सो मेलेनिन पिगमेंट्स क्या करते हैं, इन द फोटोसिंथेसिस की तरह एक्ट करते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे विल सिंथेसाइज विटामिन डी, वो नेचुरली बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता है। तो ओके, यू नीड समवन हु विल प्रोड्यूस दैट, बट उसके लिए प्री रिक्विजिट क्या है, सनलाइट, यूवी लाइट। यूवी लाइट में भी होगा, लेकिन हर जगह पे तो यूवी लाइट पॉसिबल नहीं है। सो दैट इज़ अ नेचुरल एंड फ्री सोर्स, इसलिए सनलाइट इज इम्पॉर्टेंट। तो सनलाइट इस मेलेनिन स्किन के इस मेलेनिन पिगमेंट पे आएगा और वहाँ से विटामिन डी जनरेट करेगा। तो दिस प्रोसेस एवरी स्किन टोन, एक प्रोसेस मतलब उसको कितना टाइम लगेगा, समझो 20 मिनट में वो अपना रिचार्ज हो गया, विटामिन डी का कोटा उसने पूरा कर लिया। तो आफ्टर 20 मिनट्स नाउ यू विल फील दैट बर्निंग सेंसेशन, बिकॉज इसका जो कैपेसिटी है दैट इज़ फॉर 20 मिनट्स या 1 आवर। ओके, वाई इट इज़ एडवाइज दैट यू शुड बी taking sunlight in the morning, because during that time the intensity of sun rays is low. ओके, इंटेंसिटी लो होता है तो आपके बॉडी में इनफ वो रिचार्ज होने के लिए इनफ टाइम मिलता है। ओके, इट विल टेक, इफ़ यू गो इन द 12 o'clock सनलाइट, उससे क्या होगा, वो इंटेंसिटी वो सेल को डैमेज कर देगा। ओके, इवन और ये जो सनलाइट सनस्क्रीन होता है वो क्या करेगा, इफ़ इट टेक्स से 20 मिनट्स टू रिचार्ज दिस सेल, ओके, तो 20 मिनट्स बाद क्या होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा। तो समझो SPF 20, तो वो 20% टाइम उसका एक्सटेंड करेगा, प्रोलॉन्ग करेगा, नॉट मिनट्स। 20% ऑफ टाइम इज नाउ 30, मतलब 30% ऑफ द टाइम इज नाउ एक्सटेंडेड। अगर आप 1 घंटा सन में रुकते हो तो 1 घंटा 20 मिनट आप रुक सकते हो। आर यू गेटिंग? तो मतलब डिपेंड करेगा लेकिन रिचार्ज करने का रेट क्या है बॉडी? हाँ, So, SPF 50 मतलब twice the time is really मतलब अगर 2 घंटा आपका बॉडी को चाहिए तो आप 3 घंटे तक उसको कैरी कर सकते हो। तो आफ्टर 3 आवर्स यू हैव टू रीअप्लाई इट। ओके, एंड इट विल नॉट फिल्टर एवरी यूवी रेस। अगर सभी यूवी रेस वो फिल्टर करेगा तो आपका बॉडी को सनलाइट मिलेगा ही नहीं ना। ओके, तो हार्मफुल यूवी रेस विच आर मोर, देखो दैट ओजोन एक्ट्स लाइक अ नेचुरल सनस्क्रीन टू अर्थ। वो हार्मफुल यूवी रेस क्या करेगा, को एब्जॉर्ब करेगा, एंड द वन विच इज डाइल्यूटेड इट इज अलाउड टू गो टू अर्थ। वो भी हम लोग के लिए इट इज़ मोर डेंजरस व्हेन इट इज़ हाईली इंटेंसिव ड्यूरिंग से 11 बजे से 3 बजे तक। ओके, बिकॉज वी आर इन द जोन ऑफ डायरेक्ट सनलाइट। आर यू गेटिंग? सो ओजोन लेयर इज लाइक अ सनस्क्रीन, नेचुरल सनस्क्रीन। तो अगर उस ओजोन लेयर है ऊपर, उसमें से यहाँ पे कुछ ओजोन लेयर का डेंसिटी कम हो जाएगा, तो सन रेज जो यूवी रेज है हार्मफुल, दे आर इजीली रीचिंग अर्थ। द डाइल्यूशन ऑफ ओजोन डेंसिटी इट इज टर्म्ड एज ओके, वो हम लोग आगे देखेंगे क्या केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस मतलब क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है। ओके, अभी वो ओजोन होल को हम लोग ने वी आर एबल टू कंट्रोल इट। ओके, हील कर दिया है बहुत। सो दिस इज ओजोन। ओके, ओजोन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द ग्राउंड लेवल। ओके, क्या क्या मैट bad ozone, yes. Why it is bad ozone? Because it converts, it is a primary pollutant,
in the presence of sunlight and another catalyst, it will get converted into secondary pollutants. Okay, and that is harmful. This morning work is protected between 7 to 8 उसके बाद after direct sunlight आने के बाद morning work अच्छा नहीं होता है। देखो पॉल्यूशन में हम लोग आगे पढ़ेंगे ना, कुछ प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं. ओके, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स यू नो दिस इज ओजोन, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड या दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड. यू आर एबल टू कंट्रोल देम. इफ समटाइम्स दिस प्राइमरी pollutants they react with another pollutants to make a secondary pollutant. वो आपस में केमिकल रिएक्ट करते हैं और उसके वजह से वो लोग दूसरा केमिकल सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बनाते हैं, विच इज़ मोर डेंजरस. इवन इफ इट इज़ मोर नॉट एज मच डेंजरस, लेकिन उसका लाइफ टाइम इन दिस सिस्टम, इन दिस एनवायरमेंट इज़ मोर. अगर CO है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो वो जल्दी से डिसइंटीग्रेट भी होगा एटमॉस्फेयर में से 1 और 2 डेज में. फॉर एग्जांपल जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स हैं वो 1-2 साल तक रहेंगे. एलिमेंट अगर हम ग्राउंड लेवल पे ओजोन प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर मतलब नॉर्मली तो ओजोन 10 किलोमीटर ऊपर होता है. हाँ, नहीं ग्राउंड में भी होगा बिकॉज ऑफ राइजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन. आपको ओजोन भी लगता है. व्हाट इज़, आप ये जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर होता है ना, इट इज़ ओजोनाइज्ड. इट इज़ ओजोनाइज्ड. ओके, तो केमिस्ट्री में अपना इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है. Sir, there was a discussion in the class, in our class. Sir, in the morning time, all the carbon dioxide and all the pollutants are concentrated near the ground. Then at the afternoon time, the difference increases. मतलब air expand होता है. तो morning walk harmful है या 11 बजे वाला walk harmful है? देखो, मॉर्निंग वॉक इन अर्बन एरिया इट इज़ हार्मफुल. इट इज़ हार्मफुल टू whom? The one who is having respiratory problem. When the sunlight falls after 7 or 8 o'clock, then वो जो होता है lower thermometer, that is activated. So No, that is not activated, that is expanded. अर्थ सरफेस को हीट होना पड़ता है. अर्थ सरफेस हीट होगा तो वो एयर विल एक्सपांड. ऑल द पॉल्यूटेंट्स दे आर पुश्ड टुवर्ड द हायर अल्टीट्यूड. ओके, अभी आप दिल्ली में पॉल्यूशन देखते हो, बहुत पॉल्यूशन है दिल्ली में, बहुत पॉल्यूशन है, ऐसा सब लोग बोलते हैं और वो फैक्ट भी है. वाई इट इज़ हैपनिंग? ड्यूरिंग विंटर द लैंड इज़ वेरी मच कोल्ड एंड द एयर सराउंडिंग द लैंड इट विल बी इवन कूलर कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द एरिया. तो इट विल, जो एयर होता है वो डेंस होता है. कूल एयर इज डेंसर, इट विल रिमेन लो. ओके, करेंगे, अभी करेंगे उसको आगे. N2 दैट इज नाइट्रोजन, दैट इज उसको 26 करना है. यूजुअली वी यूज टू हैव दिस, मोबाइल में वो होता है ना ऐप, तो क्लासेस में जब भी होता था वो वी यूज टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू ऐसा. इसको 26 कर दो, 26 कर दो इसको. ठीक है. नेक्स्ट इज व्हाट, दैट वाज गैसेस, इंपॉर्टेंट गैसेस हम लोग ने जो पढ़ा. ओके, नेक्स्ट वी विल बी कमिंग वाटर वेपर. देखो वाटर वेपर होता है, अभी ये मैंने सिर्फ लिखा है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. ओके, मतलब क्या, द मोर देर इज अ वाटर वेपर, द मोर देर इज अ टेम्परेचर. टेम्परेचर क्या करेगा? इवोपरेशन ज़्यादा करेगा. थैंक यू. टेम्परेचर इवोपरेशन ज़्यादा करेगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर. लेकिन डेजर्ट में भी तो है ना टेम्परेचर ज़्यादा. ओके, तो देर आर डिफरेंट फैक्टर्स ऑल्सो, लेकिन इन जनरल टर्म्स more heat, more evaporation, more water vapor will be there in the air. Okay, and it is lower at the poles. मतलब poles में जो water vapor होगा वो condense होके ice form में आएगा. तो air में ऐसा there will be dryness. Okay, water vapor content decreases latitude wise. What is latitude?
the horizontal the imaginary lines which are running, along the equator. yes, horizontal running, they are called as, they are parallel to each other ना. देखो, this is equator, okay. Then as you move away from the equator towards higher latitude, equator is 0 degree, higher latitude is 90 degree, okay. As you move from, this is equator, as you move from equator towards poles, okay, the amount of insolation decreases, and if insolation decreases, so maximum water vapor will be present near lower latitudes, that is equator, in the tropical region, correct. 90% of the water vapor you will find up to the height of 5 kilometers, up to the height of the 5 kilometers, 5000 meters roughly, okay. Sometimes you will even find it in the 6 kilometers के आसपास, when there is a convergence turbulence, okay. देखो, generally the lighter element will be up till the higher reaches. Oxygen से heavier is carbon dioxide, CO2 ऑक्सीजन प्लस कार्बन, H2O अभी इसका वेट, मॉलिकुलर वेट भी, मतलब इट विल बी ऑफ मोर डेंसर कंपेयर टू ऑक्सीजन, तो वो कहाँ पे मिलेगा आपको, एट द लोअर, समझ रहे हैं. एंड इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी इन द एयर. ये मैं कंसेप्ट थोड़ा बाद में बताऊंगा, व्हाट इज मेंट बाय स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी, ओके. एब्जॉर्ब्स इंसोलेशन एंड एक्ट एज ए ग्रीन हाउस गैस, ओके. इट एब्जॉर्ब्स इंसोलेशन एंड एक्ट एज ए ग्रीन हाउस गैस. वाटर वेपर इज ऑल्सो इन ग्रीन हाउस गैस. Dust particle, next composition of atmosphere is dust particle, okay. They are generally concentrated in the lower layers of the atmosphere. It is compared to other gases, it is heavier, तो वो ज़्यादा कहाँ मिलेगा, lower regions of the atmosphere, okay. And देखो, high concentration at subtropics, ठीक है. This again I will explain in short while, क्योंकि tropics क्या है, सब बाकी चीज़ क्या है, टेम्परेट क्या है, ट्रॉपिक्स क्या है, फ्रिजिड जोन क्या है, वो मैं थोड़ा बताऊंगा अभी, ओके. हाई कॉन्सेंट्रेशन इज एट सब ट्रॉपिक्स, मतलब दिस इक्वेटोरियल रीजन, दिस आर विच, ये 23.5 डिग्री क्या बोलेंगे इसको हम लोग, ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. द जोन बिटवीन दिस टू ट्रॉपिक्स इज कॉल्ड एज ट्रॉपिकल जोन. स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, तो बियॉन्ड दिस देर विल बी सब ट्रॉपिकल, दिस जोन. तो जो डस्ट होगा, डस्ट पार्टिकल्स, वो यहाँ पे ज़्यादा नहीं होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा इस जोन में, बिकॉज इन दिस जोन देर इज मोर वाटर वेपर. जब वाटर वेपर ज़्यादा होगा तो वाटर वेपर, डस्ट क्या करता है, डस्ट एक्ट्स लाइक अ हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई. मतलब एक डस्ट पार्टिकल होगा, उसके ऊपर वाटर वेपर विल कंडेंस. वाटर वेपर नीड्स सम बेस, कंडेंस होगा और वो हेवियर बन के कहाँ पे आएगा, सरफेस पे, लोअर लेयर्स पे आ जाएगा, ओके. सो इन, तो जितना मॉइस्चर एयर में से कम होगा उतना डस्ट एयर में ज़्यादा स्प्रेड होगा. देखो यहाँ पे कुछ पॉल्यूशन है और एक दिन थोड़ा सा बारिश हो जाएगा तो उसके बाद वो यू विल फील एवरीथिंग क्लियर, ओके. सो इन दिस सब ट्रॉपिकल जोन देर इज लेस अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, देर विल बी हाई अमाउंट ऑफ डस्ट, ओके. जो साउथ इंडिया होता है, साउथ इंडिया में यू विल फील लेस डस्ट, ओके, ऐसा. एंड दो पर्सन, दैट पर्सन्स व्हेन दे गो इन नॉर्थ इंडिया दे फील दैट सफोकेशन वाला प्रॉब्लम ज़्यादा, ओके. जनरली बता रहा हूँ मैं.
डस्ट पार्टिकल हैज़ लो कॉन्सेंट्रेशन एट इक्वेटर एंड पोल्स. पोल्स पे जो भी हर कोई चीज़ होगा वो डेंसर होके बिकॉज ऑफ चिल इट विल remain at the ground level. Okay, and there is a hygroscopic nuclei, scattering of light. Hygroscopic, it acts like a hygroscopic nuclei. Hygroscopic nuclei मतलब it gives the base for water vapor to settle, condense. And what is meant by scattering of light? नहीं, टिंडल इफेक्ट तो है, लेकिन what is meant by that scattering of light? पार्टिकल्स बड़े होते हैं कि उनके बीच में लाइट तो पता चलता है कि लाइट. If the diameter of that particle, for example particle size, ठीक है, ये particle है एक, ठीक है, and this is a light which is radiated in the form of wavelengths. If the wavelength of this light is bigger than the diameter of this particle, it will easily cover this particle. If the wavelength of light is small compared to size of this particle, then it won't be able to cover this, rather it is deflected. This light is deflected. Okay, this deflection of light is called as deflection. For example, uneven deflection is called as scattering. Law of reflection क्या बोलेगा? The angle of incidence is equal to angle of reflection, because this is a very plane surface. When there is undulating surface, angle of reflection will still be equal to angle of, लेकिन हम लोग को दिखेगा कैसा? वो इस तरफ जाएगा, because plane is now this ना, यहाँ पे लाइट आएगा तो यहाँ पे जाएगा. ओके, तो व्हेन देयर इज अ ग्लास, तो उसका जो रिफ्लेक्शन होता है दैट इज इन द सेम डायरेक्शन, पॉलिश्ड. व्हेन देयर इज अ अनड्यूलेटिंग सरफेस, रफ. ओके, अभी ये जो रफ है, देखो ये पॉलिश्ड है, तो इसका रिफ्लेक्शन आपको दिखेगा. ये मैट फिनिशिंग है. मैट फिनिशिंग मतलब क्या? नहीं, इट इज़ नॉट पॉलिश्ड. उसका टेक्सचर देखोगे तो दैट इज रफ. तो all the light which is coming on it, okay, वो उसके अंदर देखो ऐसा हो गया. तो all the light which is coming on it, it is reflected in different direction. तो हम लोग के आँख में इमीडिएट सारा लाइट नहीं आता है. ओके, अगर वो पॉलिश्ड होता तो all the light which is incident, it is reflected in, if you are standing here, okay, तो यहाँ पे आपको एक ही लाइट दिखेगा थोड़ा, बाकी लाइट दूसरे यहाँ वहाँ बिखर गया. ओके, दैट इज कॉल्ड एज स्कैटरिंग. सो डस्ट पार्टिकल्स आर देयर इन द एटमॉस्फेयर. इनकमिंग जो लाइट होता है उसको वो लोग स्कैटर करते हैं. अभी वेवलेंथ ऑफ, देखो लाइट ट्रेवल्स इन अ विजिबल स्पेक्ट्रम फॉर एग्जाम्पल, और उसके कंपोनेंट्स कितने होते हैं? 7. विबग्योर ना, वॉयलेट टिल रेड, बाकी सब है. वॉयलेट का जो वेवलेंथ होता है दैट इज शॉर्ट वेव. रेड का वेवलेंथ होता है, कंपेयर टू दिस इट इज लॉन्ग वेव. So during daytime, these dust particles, they are able to scatter which wavelength? तो bluish sky दिखता है. ओके, bluish sky दिखता है, ठीक है. नाउ मूविंग अहेड, वो तो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर था. क्या क्या था? गैसेस, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स मेनली. ओके, देन देर आर डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. अगेन, एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर्स, ओके, विच आर सेटल्ड अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी. डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर इज मोर नियर टू द surface of the earth, and as you move at the higher altitude the density decreases.
Okay, that is one thing. There is variation of atmosphere also latitude wise. मैंने क्या बोला? फर्स्ट थिंग मैंने क्या बोला? देखो, ये तो है वर्टिकली. There is the more atmosphere is located in the lower reaches. जैसा जैसा आप you will go at the higher altitude, at the higher height, the density of atmosphere will decrease. The density of atmosphere will decrease. Also on this earth, समझो this is equator, this is north pole. Sometimes there is decrease, मतलब there is change in the size of the layer. Okay, the composition, the density also varies from equator towards poles. Sometimes this area is more denser at the poles. Density, क्योंकि पूरा एयर कहाँ पे सिंक हो रहा है? At the poles. तो there is a variation altitude wise, there is variation latitude wise. So latitude wise, पोल्स पे देर इज एयर इज मोर डेंसर. ओके, तो और नीचे तक आ जाएगी. ओके, वी विल कम टू दैट. ओके, ये समझ में आया आपको? विद द इंक्रीज इन अल्टीट्यूड देर इज डिक्रीज इन द डेंसिटी. ओके, नाउ फर्स्ट लेयर इज ट्रोपोस्फियर. फर्स्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज troposphere. It is the most important layer because in this layer there is what? Oxygen, water vapor. These two conditions are very necessary to sustain life. These two conditions are very necessary to sustain life. Okay, the average height of troposphere, it is 10 kilometers. Average height is 10 kilometers. देखो, ठीक है, 13 किलोमीटर से कोई बात नहीं. Average height is 13 kilometers. Okay, however this height is not uniform throughout the earth. Okay, this height is not uniform throughout the earth. मतलब क्या? What it means? It means that, okay, this is earth, which is the first layer, troposphere. Okay, so it is like this. The height of troposphere from surface till above layer, मतलब at this is equator, consider this as equator and this as poles. The height of troposphere, it is at this height. Okay, और troposphere का जो layer है वो at poles it is at this height. troposphere के बाद poles पे क्या शुरू हो जाएगा? stratosphere. Okay, लेकिन at poles, at equator, the height of troposphere is more, it is the thickness is more. तो average at poles it is 8 kilometers, at equator it is 18 kilometers. Why this is happening? Because at equator, see, at equator there is more sunlight coming. The sunlight is more, and that because of that atmosphere, the air, in simple terms, air will expand. Okay, air expand होके वो rise करेगा. तो all the composition, the components of air, they will also rise with the air. So you will be able to find the same air up till higher reaches. Getting? तो at equator, the troposphere is ऐसा दिखेगा. समझो this is 0 degree. Okay. तो ट्रोपोस्फियर का हाइट एट पोल्स विल बी एंड एट इक्वेटर इट विल बी लाइक दिस. ओके, तो इतना हाइट तक आपको ट्रोपोस्फियर मिलेगा. ओके, सो ऑल चेंजेस इन द क्लाइमेट एंड वेदर टेक प्लेस इन दिस रीजन. ऑल चेंजेस मतलब क्या? क्लाउड फॉर्मेशन, रेन फॉर्मेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, साइक्लोन्स. अबाउ दिस देखो, मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर इज इन ट्रोपोस्फियर. Above this there will be very less formation of clouds क्योंकि water vapor as such decrease हो जाएगा.
ओके, तो दैट इज़ वाई जो भी एयरप्लेन्स होते हैं वो स्ट्रेटोस्फियर में से जाते हैं, बिकॉज लेस टर्बुलेंस मीन्स लेस डिस्टर्बेंस, मतलब लेस यूज ऑफ फ्यूल का इकोनॉमी भी ज़्यादा बढ़ेगा. ओके, बट इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ फॉर ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ बिकॉज it is important for the sustaining life form. Okay, now what is lapse rate? Lapse rate मतलब when you go from surface to a higher latitude, the amount of the density of atmosphere decreases. and atmosphere में density मतलब greenhouse gas का component decrease होगा. Okay, and we have seen that ये सरफेस है, अर्थ सरफेस, दिस इज लिथोस्फीयर फॉर एग्जाम्पल, एंड दिस इज व्हाट एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर इज हीटेड बाय इंसोलेशन या एटमॉस्फेयर इज हीटेड बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. एटमॉस्फेयर को कौन हीट करता है? Insolation is transparent to the atmosphere. Atmosphere is not able to absorb the insolation. तो एटमॉस्फेयर को हीट कौन करेगा? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. अर्थ सरफेस गेट्स हीट फ्रॉम द सन. ओके, लेकिन जब अर्थ सरफेस जब हीट होगा देन इट विल स्टार्ट रेडिएटिंग. दैट मीन्स इट विल हीट अप द एटमॉस्फेयर विच इज लाइंग ओवर दैट. ओके, तो एज यू मूव अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ द हीट, एटमॉस्फेयर के लिए सोर्स ऑफ हीट क्या है? अर्थ सरफेस. तो जैसा जैसा आप सरफेस से दूर जाओगे अमाउंट ऑफ हीट विल डिक्रीज. जब अमाउंट ऑफ हीट डिक्रीज होगा तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा. तो एज यू मूव अवे फ्रॉम द सरफेस टू अ हायर अल्टीट्यूड देयर इज डिक्रीज इन द टेम्परेचर. आर यू गेटिंग? सो व्हाट इज द रेट ऑफ दैट डिक्रीज? In normal terms, the rate is as you move 1 kilometer above. ज़मीन से अगर आप 1 किलोमीटर अबाव जाओगे तो रफली देर इज 6 डिग्री रिडक्शन. इन शॉर्ट, अगर आप 165 मीटर, इफ यू गो 165 मीटर अबाव, देर विल बी डिक्रीज इन द 1 डिग्री सेंटीग्रेड्स. 6.5 आएगा, 6 आएगा, 6 पॉइंट, हाँ, तो 6.5 रफली, जस्ट समझने के लिए. ओके, तो एज यू मूव मतलब नाउ द टेम्परेचर एट दिस से भुवनेश्वर इट इज से कंसिडर, इसने कम नहीं किया क्या, 24 डिग्री. तो एज यू गो 1 किलोमीटर अबाव 1000 मीटर द टेम्परेचर विल बी 18 डिग्री सेंटीग्रेड्स. ओके, दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल लैप्स रेट. क्या बोलेंगे? नॉर्मल लैप्स रेट. नाउ कंसिडर वन थिंग, इफ दिस इज नॉर्मल, एज यू गो, दिस इज एयर कॉलम, फॉर एग्जाम्पल ये एयर कॉलम है, ठीक है. तो अभी समझ में आया आपको? हम लोग सरफेस सी लेवल पे हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों देखते हैं? 1 atm कंसिडर करते हैं. वाई? बिकॉज अगर आपके वर्टिकल में देखोगे तो पूरे एटमॉस्फेयर का प्रेशर कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा? एट द लोअर लेवल. पूरे लिथोस्फीयर का प्रेशर कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा? एट द कोर. अगर आपने कोर को ऐसा उठा लिया तो यू विल बी एबल टू लिफ्ट द अर्थ. सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे है? सेंटर ऑफ मास. इस चीज़ को अगर आपको लिफ्ट करना है तो आप इस सेंटर ऑफ मास को उठाओगे तो इजीली ऑल द मास विल बी इजीली लिफ्टेड अप. ओके, तो पूरे एटमॉस्फेयर का सेंटर कहाँ पे होगा? प्रेशर. ओके, तो हम लोग उसको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंसिडर करते हैं. ठीक है. नाउ एज यू मूव अप
से 1 किलोमीटर, तो आपका रफली कितना डिग्री, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर डिक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। अल्टीट्यूड अगर आपका इंक्रीज हुआ तो इन नॉर्मल टाइम्स, इफ योर एयर हैज़ मॉइस्चर इन इट, if your air has moisture in it, तो क्या होगा? करेक्ट। मतलब देखो, when the air contains moisture, इसमें भी मॉइस्चर होगा लेकिन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा मॉइस्चर है, ओके, देन द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विल बी लेस। मतलब द सेम एयर व्हेन इट रीचेस 1 किलोमीटर हाइट, व्हेन इट रीचेस 1 किलोमीटर हाइट, उसका टेम्परेचर कितना कम हुआ है? उसका टेम्परेचर कम हुआ है 4 डिग्री। मतलब एट नॉर्मल सरफेस द टेम्परेचर इज से 24 डिग्री सेंटीग्रेड्स, ऊपर जाके यहाँ पे कितना होगा 1 किलोमीटर पे? 18 डिग्री सेंटीग्रेड्स। द सेम air pocket when it has moisture in it at surface is 24 degree, above जाके वो कितना होगा? 20 डिग्री। सो देयर इज डिक्रीज इन द डिक्रीज रेट। लैप्स रेट में डिक्रीज हुआ ना, लैप्स रेट मतलब क्या? एज यू मूव अवे फ्रॉम द सरफेस देयर इज डिक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द एयर, ओके, दिस इज कॉल्ड एज लैप्स रेट। अभी व्हेन देयर इज अ moisture, there is more moisture because specific heat of water is more than the specific heat of air, yeah, solid. Specific heat of air is more, okay. So now half of the energy is utilized to heat this water, और water आराम से heat होता है ना, तो it will, तो 1 किलोमीटर जब जाओगे आप, ओके, तो वाटर वेपर इज लाइक अ ग्रीन हाउस गैस, इट विल ट्रैप मोर हीट, ओके। तो यहाँ पे जाओगे तो जो एयर कॉलम होगा उसमें हीट कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होगा ना, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल ग्रीन हाउस गैस है, इट विल ट्रैप हीट। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल कम है, तो जब ये फर्स्ट 1 किलोमीटर ऊपर आएंगे तभी देखेंगे अरे इसमें मतलब इसमें हीट कंटेंट इतना है, ओके। और जैसा वाटर मॉलिक्यूल वाला एयर ऊपर आएगा तो इसमें देयर इज मोर हीट कंटेंट, मोर हीट कंटेंट मतलब लेस टेम्परेचर डिक्रीज। समझ रहे हैं धनंजय? वो क्या बोला मैंने? मोर हीट मतलब टेम्परेचर विल बी डिक्रीज इन द लैप्स रेट, कम होगा, ठीक है। इसको बोलेंगे वेट लैप्स रेट, वेट लैप्स रेट। इसका ऑन द अदर साइड कंसिडर अनदर एग्जांपल जिसमें नॉर्मल वाटर वेपर से भी कम वाटर वेपर होता है, ड्राइनेस होता है एयर में, द एयर इज मोर ड्रायर। तो यहाँ पे अगर उसका 24 डिग्री सेंटीग्रेड्स है तो एज यू गो 1 किलोमीटर अप द डिक्रीज इन द टेम्परेचर विल बी ग्रेटर। तो यहाँ पे कितना होगा इसका टेम्परेचर? ठीक है, 14 ले लो, 16 ले लो, 10 कुछ भी ले लो, मतलब द डिक्रीज इज मोर। मतलब सर साउथ इंडिया में ज़्यादा लैप्स रेट होगा, नॉर्थ इंडिया में कम? कैसा? अकॉर्डिंग टू हिम साउथ इंडिया में लैप्स रेट ज़्यादा होगा, मतलब डिफरेंस ज़्यादा होगा और मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा कहाँ पे होगा, नॉर्थ में या साउथ में? आई थिंक नॉर्थ, क्योंकि सर उत्तराखंड और उड़ीसा में कंपेयर हो रहा था तो नॉर्थ में सेम टाइप ऑफ क्लाइमेट था मगर वहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा था। मॉइस्चर कंटेंट कैसा वहाँ पे ज़्यादा होगा? साउथ में इज मोर क्लोजर टू द
इक्वेटर वो भी एक बात है, एंड इट इज़ अ पेनिनसुला, इट इज़ सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इज रिलेटिवली मोर. वो बात नहीं, जो आइस कैप्स है सर उसी की वजह से बोल रहा हूँ. आइस कैप तो मॉइस्चर ऊपर नहीं जाएगा ना. आइस कैप द मॉइस्चर इज स्टोर्ड इन द आइस फॉर्म इन द ग्राउंड लेवल. एयर हम लोग ने क्या देखा, थोड़े से टेम्परेचर इंक्रीज होने से भी जितना भी ऊपर ऑपरेशन होगा तो वो वहाँ पे हीट ट्रैप हो जाएगा, तो उसकी वजह से और भी ज़्यादा हीट ट्रैप होने के लिए वहाँ पे डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर इज लेस. हीट रिलीज होगा तो निकल जाएगा. क्लाउड कवर भी चाहिए ना हीट ट्रैप करने के लिए. क्वेश्चन क्या था आपका, आपने क्या पढ़ा था? सर लास्ट मंथ की पढ़ा था कि उड़ीसा में जैसा टेम्परेचर है उत्तराखंड में भी वही टेम्परेचर है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि वहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा है. नहीं, उड़ीसा उत्तराखंड इज टूवर्ड द हायर लैटिट्यूड और अल्टीट्यूड भी ज़्यादा है और लैटिट्यूड भी ज़्यादा है. उड़ीसा और मुंबई आप कंपेयर कर सकते हो. उत्तराखंड या दूसरा कुछ है टेम्परेचर नहीं. प्लेन होगा देहरादून में. ओके लेकिन मॉइस्चर कंटेंट का तो इट विल डिफर. ओके ये समझ में आया. इसको बोलेंगे ड्राई लैप्स रेट, ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट. एडियाबेटिक कैटियाबेटिक क्या है वो बाद में बताऊंगा. ओके मैंने पर्पसली वो वर्ड यहाँ पे यूज़ नहीं किया अभी. ड्राई लैप्स रेट. तो जो मैंने स्टेटमेंट पहला बोला था दैट वाटर वेपर में हम लोग ने देखा था इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी. ठीक है, इसका मतलब क्या, देखो नॉर्मल एयर है, व्हेन यू हीट द एयर इट विल बिकम इनस्टेबल and it will expand, it will ascend, rise, it will rise. Okay, the more the amount of water vapor उसका rise will be, अगर वाटर इसको मैंने हीट किया एयर को, मतलब बिकॉज ऑफ इंटेंस हीटिंग ऑफ लैंड द एयर अबव इट विल हीट गेट एक्सपांडेड, इट विल बिकम अनस्टेबल, इट विल ट्राई टू गो अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ हीट, अनस्टेबल होके एक्सपांड होगा. ठीक है, अभी इसमें वाटर वेपर ज़्यादा है तो अगर इसमें वाटर वेपर ज़्यादा है तो वो लेस अनस्टेबल होगा ना, बिकॉज उसका लैप्स रेट कम है. मतलब वो थोड़ा ऊपर जाएगा तो उसका टेम्परेचर रेंज जो सडन चेंज होगा वो इतना सडन चेंज नहीं होगा. Okay, on the other hand, there will be more instability. नहीं थंडरस्टॉर्म इसमें ही आएगा, बोल रहा हूँ मैं. ठीक है, कैसा, तो व्हाट इज दिस, ये है, दिस पिक्चर इज एट 1 किलोमीटर हाइट. ओके नाउ कंसिडर वन मोर एग्जाम्पल जस्ट टू अंडरस्टैंड द इंस्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी. देखो यहाँ पे दिस इज नॉर्मल एयर पॉकेट, दिस इज 1 किलोमीटर हाइट. ओके एट 1 किलोमीटर हाइट दिस 24 डिग्री विल बिकम 18 डिग्री, 6 डिग्री लेस. ओके एंड एट 1 दिस इज एट सेम 1 with moisture. Okay, this is normal, this is wet, and this is dry. At 1 kilometer it is how much? ये 24 डिग्री है ना, 20 डिग्री. अभी इसको देखो, दिस इज एन एयर कॉलम, दिस इज एन एयर कॉलम, ओके, ऑफ डिफरेंट कंटिजियस नियर बाय रीजन्स. ये इतने हाइट पे आके दिस एयर कॉलम इज नाउ 18 डिग्री सेंटीग्रेड्स. लिसन, यहाँ पे देखो, एंड दिस एयर कॉलम विल बी 20 डिग्री सेंटीग्रेड्स. दैट मीन्स ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड से, ओके. नाउ इन ऑर्डर टू रीच 18 डिग्री
बैलेंस करने के लिए it has to go higher, it has to go higher, तब जाके यहाँ पे आके वो 18 होगा. लेकिन simultaneously this air will also go up, so there will always be a pressure difference, temperature difference. अभी मुझे बोलो जो ज़्यादा ठंडा है, the one which is cooler, it will be more dense मतलब high pressure for just normal. Okay, तो air always flow from high pressure to low pressure vertically, and horizontally it moves from low pressure to high pressure. थोड़ा आगे देखेंगे तो there will be continuously there will be difference in the temperature and pressure, so there is a flow of air. Okay, क्योंकि there is a instability. Okay, there is instability, and when the amount of water vapor changes, there will be increase in the instability या decrease. मतलब वाटर वेपर का कंटेंट के ऊपर डिसाइड होता है ना इंस्टेबिलिटी. अगर इसमें सेम वाटर वेपर होता, यहाँ पे सेम वाटर वेपर होता, तो इंस्टेबिलिटी होता इतना नहीं. आर यू गेटिंग? सो दिस इज अ रोल ऑफ वाटर वेपर इन क्लाइमेट. देखो प्रेशर किसके वजह से होता है? टेम्परेचर के वजह से. टेम्परेचर किसके वजह से कंट्रोल होता है? अल्टीट्यूड की वजह से, ऑल्सो लैटिट्यूड की वजह से, ऑल्सो द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर. उस एयर कॉलम में कितना मॉइस्चर है? अगर ज़्यादा मॉइस्चर है तो उस एयर कॉलम का टेम्परेचर कम रहेगा, और ड्राइनेस है तो उस एयर कॉलम का टेम्परेचर ज़्यादा होगा. अभी ये जो अगर इसमें भी मॉइस्चर डाला तो दोनों का टेम्परेचर माइट बी सेम, लेकिन इस पर मॉइस्चर कंटेंट कम है, तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस आया है दैट इज़ बिकॉज ऑफ वाटर वेपर. समझ रहे हैं? अभी एट द सेम लैटिट्यूड यहाँ पे एक एयर कॉलम है, इसमें कुछ मॉइस्चर है. एट द सेम लैटिट्यूड यहाँ पे कुछ एयर कॉलम है जिसमें ज़्यादा मॉइस्चर है. एट द सेम लैटिट्यूड यहाँ पे कुछ एयर है जिसमें लेस मॉइस्चर है. अभी दोनों को अगर टेम्परेचर सेट करना है, बैलेंस करना है, तो दे हैव टू हैव सेम टेम्परेचर ना. लेकिन इसको अगर दिस एयर कॉलम विल ऑलवेज बी इनस्टेबल, क्योंकि ये जैसा ये ऊपर जाएगा तो ये ज़्यादा कूल होगा. दिस विल कूल नॉर्मली एंड दिस विल कूल वेरी लेस. सो ये टेम्परेचर प्रोफाइल हमेशा डिफरेंस होगा ही. सेम लैटिट्यूड पे सभी एयर कॉलम का रेट विल बी सेम, बट इफ दे हैव सेम मॉइस्चर कंटेंट. यस, मॉइस्चर कंटेंट. लेकिन मॉइस्चर किसके ऊपर डिपेंड है? अभी आप वर्ल्ड मैप देखो, इमीडिएटली सी द वर्ल्ड मैप. सेम लैटिट्यूड पे कहीं पे लैंड मास है, कहीं पे वाटर है, कहीं पे डेजर्ट भी है. ओके, तो एयर कॉलम अबाउट डेजर्ट्स विल बी डिफरेंट. एयर कॉलम ओवर द लैटिट्यूड ओशन विल बी डिफरेंट, एंड एयर कॉलम ओवर द लैंड इट इज डिफरेंट. आर यू गेटिंग? तो सेम लैटिट्यूड पे आपको मॉइस्चर कंटेंट वेरी होगा तो लैप्स रेट भी वेरी होगा. हाँ, यस. ओके, ऑल्सो मॉइस्चर कंटेंट वेरीज लैटिट्यूड वाइज. ओके, लैटिट्यूड वाइज भी होगा ना. इक्वेटर पे मॉइस्चर कंटेंट अलग है, टेम्परेट मिड लैटिट्यूड्स में अलग है, हाइयर लैटिट्यूड्स में देयर इज अ डिक्रीज इन द वाटर वेपर. ओके, आर यू गेटिंग?
तो इसीलिए वेव हमेशा डिप्रेशन होता है, वेव पेपर में हमेशा लो प्रेशर होता है इसलिए। नहीं, उसके लिए अलग मल्टीपल फैक्टर्स हैं। तो ये कारण है ना सर कि water- ये एक कारण हो सकता है कभी तो, लेकिन द मेजर फैक्टर्स आर डिफरेंट। ओके, देन ट्रोपोपॉस, ट्रोपोस्फियर के ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगा? देखो, ये समझ में आया आपको? तो दिस इज सरफेस, फर्स्ट लेयर इज व्हाट? Troposphere. Again, there is no as such stark difference. There will always be a zone which is separating two layers. The next is what? Tropopause. एक जोन होगा, फिर उसके बाद शुरू होता है स्ट्रेटोस्फियर। नाउ जस्ट उसके पहले इन ट्रोपोस्फियर एज यू मूव, अभी ये है टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल 5, 10, 15, 20, 25. For example, in troposphere, look here, as you move away from the surface towards higher latitude, temperature will increase or decrease? So temperature decreases, correct? Okay, so ये ग्राफ ऐसा होगा ना, in troposphere as you move, temperature will decrease. Now we will study about stratosphere. Stratosphere extends from surface to it is above roughly 45-50 किलोमीटर तक है। उसके आगे भी मिलेगा, लेकिन दैट इज जोन, मतलब जस्ट ऑन एन एवरेज इट इज एक्सटेंडिंग अप टू हाइट ऑफ 50 किलोमीटर्स फ्रॉम सरफेस। दिस इज अप टू हाइट ऑफ 13 किलोमीटर एवरेज। देखो, ये वेरी भी होता है, विंटर में थोड़ा वो नीचे तक आएगा, समर में थोड़ा अबव जाएगा, ठीक है। स्ट्रेटोस्फियर इट इज फ्रॉम सरफेस इट इज 50 किलोमीटर्स। द मेन कंपोनेंट इज व्हाट? ओजोन। ओजोन क्या करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंसोलेशन में से यूवी रेस विच इज़ द मोस्ट डेंजरस एंड द मोस्ट हॉटेस्ट कंपोनेंट, उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जब वो एब्जॉर्ब करेगा तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो इन स्ट्रेटोस्फियर एज यू गो एट द हायर अल्टीट्यूड देयर विल बी increase in the temperature, there will be increase in the temperature because stratosphere is warm because of the heat which is trapped by ozone. तो टेम्परेचर प्रोफाइल दिख रहा है अभी? हाँ, तो अगेन नेक्स्ट इज व्हाट? स्ट्रेटोपॉस। ओके, नेक्स्ट कम्स मेसोस्फियर। ओके, मेसोस्फियर जमीन से लेके 80 किलोमीटर तक होगा। ओके, एंड अगेन देयर विल बी व्हाट? देयर इज नो ओजोन, सो अगेन एज यू मूव अप देयर इज डिक्रीज इन द नेगेटिव होने दो, लेकिन कंपेयर टू अगर उस लेयर में हम लोग देखा नेगेटिव होगा। चलो ट्रोपो यहाँ पे है, टेम्परेचर इज 0 डिग्री फॉर एग्जांपल यहाँ पे। ओके, तो जैसा ऊपर जाएंगे जैसे अबव, ओके, तो वहाँ पे टेम्परेचर शुड बी -40 डिग्री, लेकिन उतना नहीं मिलेगा। ओके, और देखो ट्रोपोस्फियर है फॉर एग्जांपल, नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर इज 20 डिग्री या 22 डिग्री। 1 किलोमीटर ऊपर जाके कितना मिलेगा? 16। ट्रोपोस्फियर का हाइट कितना है? रफली 10 किलोमीटर्स पकड़ लो, कितना मिलेगा? 22 से -60 करो, -42 समथिंग। ओके, तो -42 इज एट ट्रोपोपॉस। तो स्ट्रेटोस्फियर में यू विल नॉट गेट -60, यू विल गेट समवॉट वार्मर। आर यू गेटिंग? दैट इज मेसोस्फियर। ओके, मेसोस्फियर के ऊपर देयर इज थर्मोस्फियर, और थर्मोस्फियर को ही बोलेंगे, थर्मोस्फियर इज अ बिगर वन,
उसके अंदर देयर आर मल्टीपल, इसको भी और हम लोग डिसेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कैटेगराइज, लेकिन जस्ट इसको नॉर्मली रखेंगे। और उसके अंदर ही देयर इज आइनोस्फीयर। आइनोस्फीयर में क्या है? आयंस। आयंस मतलब क्या? आयंस मतलब चार्ज पार्टिकल। तो नॉर्मली जो पार्टिकल होता है वो चार्ज होता है या न्यूट्रल होता है? क्यों न्यूट्रल होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर सेम। उस कुछ एलिमेंट्स में से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो या एक प्रोटॉन, तो वो क्या होता है उस पर, हाँ, ओके, तो दैट इज आयन। तो हम लोग देखते हैं ना नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, उसका मतलब क्या होता है? इफ दैट रेडिएशन फॉल्स ऑन आवर बॉडी, तो हम लोग के बॉडी के जो एलिमेंट्स होंगे दे विल नॉट डिसइंटीग्रेट इनटू आयन, ओके। सो यहाँ पे आइनोस्फीयर, तो ठीक है, आइनोस्फीयर हुआ तो क्या हुआ उसका? कहाँ पे होता है? इट इज़ एट द हाइट ऑफ 100 किलोमीटर्स ना। हाँ, मतलब क्या हुआ? तो क्या हुआ? आयंस विल रिफ्लेक्ट बैक द रेडियो सिग्नल्स, द सिग्नल्स विच आर हैविंग रेडियो वेवलेंथ, ओके। अगर ज़्यादा शॉर्ट वेवलेंथ का होगा तो वो सीधा आयनोस्फीयर के बियॉन्ड जाएगा। तो जो रेडियो सिग्नल्स होते हैं दे आर हैविंग दैट वेवलेंथ विच आर रिफ्लेक्टेड बैक बाय आयंस। तो क्या होता है देखो, यहाँ पे है ट्रांसमीटर, ओके। ये कौन सा लेयर है? आइनोस्फीयर। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ, तो यहाँ पे है रिसीवर, ओके, करेक्ट। तो आपको अगर कुछ भी सिग्नल भेजना है तो विद द हेल्प ऑफ दिस आइनोस्फीयर यू आर एबल टू ट्रांसमिट रेडियो सिग्नल्स, ओके। इसका ड्रॉबैक क्या है? दैट रेडियो सिग्नल्स हैज़ हाई वेवलेंथ। जब हाई वेवलेंथ होता है तो इट गैदर्स नॉइस, तो वो रेडियो में खर 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 ज़्यादा होगा। ऑल्सो एटमॉस्फेयर इज नॉट कॉन्स्टेंट फिक्स, इट इज अंडर मोशन। सो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन होता है ना वो वैरी करेगा, करेक्ट। तो जब वो वैरी करेगा तो आपको वो सिग्नल्स कैच करने के लिए यू हैव टू सेट द एंटीना। तो हम लोग बोलते हैं कि एंटीना घुमाओ। तो अर्लियर वी यूज टू डू दैट कि एंटीना, अरे हाँ हाँ बस 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 फिक्स ऐसा, ओके। नाउ विद द इनोवेशन, with the improved science and scientific development, we are able to generate signals which are of higher wavelength, shorter wavelength, okay, so that will go beyond this, okay। और हम लोग ने यहाँ पे एक राउटर सेट किया है, ओके। मतलब विकेट कीपर होता है, उसका रोल क्या होता है? अब कहीं से भी थ्रो करो वो एक जगह पे भेजेगा, ओके। वॉल क्या करेगा? जिस एंगल से थ्रो करेंगे उसी एंगल पे जाएगा। तो यहाँ पे देयर इज अ सैटेलाइट, अ राउटर फॉर एग्जांपल, कहीं से भी थ्रो करो, ओके, दैट इज you throw from any angle, it will throw it at your home, that is D2H. This is communication satellite, ओके। उसको अर्थ के एटमॉस्फेयर से हम लोग बहुत ऊपर हाइट पे रखते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे रखेंगे तो आपको देयर यू विल नीड मल्टीपल सैटेलाइट्स, ओके। आप 6 सैटेलाइट्स में पूरा अर्थ कवर कर सकते हो, या 3 सैटेलाइट्स में भी।
अरे वो तो 6 सैटेलाइट है ना, मतलब आपको समझ रहे हैं? ओके लेकिन इतना दूर अगर सिग्नल भेजना है आपको, ये दिस शुड बी एटलीस्ट रफली 33,000 किलोमीटर्स अबव द सरफेस, तो यू नीड हाई सैटेलाइट्स, मतलब सैटेलाइट्स विद द हाई कैपेसिटी. यू शुड need the technology which will transmit the signals up to that level. ओके तो हम लोग क्या करते हैं, what is India's need